اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کلاس 11th کا تیسرا یونٹ کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹس اینڈ پیریاڈیسٹی ان پراپرٹیز پڑھنے جا رہے ہیں. تو پہلے ہم اس کی ہسٹری دیکھیں گے کہ کیا ضرورت پڑی کلاسیفیکیشن کرنے کی ایلیمنٹس کی. دیکھو بیٹا، جہاں تک کلاسیفیکیشن کا تعلق ہے، کلاسیفیکیشن کے بغیر ایلیمنٹس کا پیریاڈک ٹیبل میں رہنا کچھ معنی نہیں رکھتا. جیسے ہم کلاس میں دیکھتے ہیں، اپنے کلاس میں، اس میں بھی اگر دیکھا جائے رول نمبر کے حساب سے تو پراپرٹی وہاں پر پراپرٹی کے حساب سے بٹھاتے ہیں بچوں کو. کہ کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی جو ٹاپر ہے ان کو آگے رکھیں گے، اس کے بعد جو ویک ہے وہ اس کے پیچھے، جو اس کے بعد زیادہ ویک ہے وہ اس کے پیچھے. یا دوسرا طریقہ ہم یہ کرتے ہیں کہ کمزور بچوں کو آگے رکھتے ہیں، اس کے بعد رکھتے ہیں مڈل کلاس والوں کو، اس کے بعد لاسٹ پر رکھتے ہیں. گویا کہ ہر ایک سسٹم میں کلاسیفیکیشن ضروری ہے. تو 1800 عیسوی میں کیا ہوا؟ 31 ایلیمنٹ ڈسکور ہوئے تھے. پھر 1865 میں 65 ایلیمنٹ ڈسکور ہوئے تھے. اور آج تقریباً ایٹ پریزنٹ above 118 elements were discovered. تو پیریاڈک ٹیبل میں ان ایلیمنٹس کو کیسے رکھا جائے، اس کے لیے بہت سائنٹسٹوں نے کام کیا. تو پہلے ہم کہیں گے کہ کیا ایلیمنٹس کو کیوں رکھا جائے، کیسے رکھا جائے. Periodic table may be defined as the table which consists all the known elements in accordance with their properties in such a way that elements with similar properties are grouped together in the same vertical column and dissimilar elements are separated from one another. جب ہم پیریاڈک ٹیبل کی بات کہیں گے تو جن کی پراپرٹی ایک جیسی ہے ان کو ایک کالم، ورٹیکل کالم یا ہارزنٹل گروپ میں رکھا جاتا ہے، اور جو ان سے ڈفرنٹ ہے ان کو الگ رکھا جاتا ہے. تو اسی کو ہم پیریاڈک ٹیبل کی نیڈ کہتے ہیں. تو سب سے پہلے 1817 میں ایک جرمن کیمسٹ آیا جس کا نام تھا ڈوبینیر. سب سے پہلے ڈوبینیر نے کیا کیا؟ اس نے تین ایلیمنٹس کو لیا، تو اس کو بولتے ہیں ڈوبینیرس ٹریڈ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس نے تین ایلیمنٹس کا گروپ لیا. فار ایگزامپل، اس نے 3 ایلیمنٹ لیے، اے، بی اور سی. اکارڈنگ ٹو دیئر ایٹامک ماس اس نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا جو بی کا ایٹامک ماس ہے، جو بیچ والے ایلیمنٹ بی کا ایٹامک ماس ہے، وہ برابر ہونا چاہیے اے اور سی کے مین کے ماس کے برابر. یا تو اس کے برابر ہونا چاہیے یا اس کے نزدیک ہونا چاہیے. فار ایگزامپل، ایٹامک ماس آف بی should be equal to atomic mass of A plus C divided by 2. یہ کہا ڈوبینیر ٹریل نے. فار ایگزامپل، اس نے لیا 3 ایلیمنٹس، لیتھیم،
लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है। जब इसने देखा, इसने कहा सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 प्लस पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 डिवाइडेड बाय 2, 9 के साथ 16, ये हो गया 46 डिवाइडेड बाय 2, 2 दूनी 4, 2, ये आ गया 23। ये 23 जो है ये बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर है। दूसरी एग्जांपल इसने दे दी, दूसरी एग्जांपल जिसमें इसने लिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का 35.5 एटॉमिक मास, ब्रोमीन का 18, आयोडीन का 127। तो क्या है, जब हम क्लोरीन और आयोडीन का लेंगे हो गया 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 0.5, 7 5 12, 1 2 1 3 3 6, 162 डिवाइड बाई 2, ये बराबर आएगा 2 8 16, 2 काया 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 81.25। तो यहां पर ब्रोमीन का है 80, अगर बराबर नहीं है मगर इसके नजदीक में है, यही बोला ड्यूबनियर ने। तीसरी एग्जांपल उसने दे दी कैल्शियम, कैल्शियम, सीरियम एंड बेरिलियम। कैल्शियम का 40, सीरियम का 88 और बेरिलियम का 137। देखो बेटा, जब हम 40 प्लस 137 डिवाइड बाई 2 लेंगे, यह आएगा 7, 4 3 7, 1 डिवाइड बाई 2, 2 8 16, 2 8 16, 2 5 10, यह आ गया 88.5। तो यहां पर सीरियम का 88 है, तो यही इसी को बोलते हैं ड्यूबनियर्स ट्रेड। अब इसमें कुछ सक्सेस है, इसमें कुछ अहम चीजें दी है जिससे ये ट्रेड कामयाब रही। पहला उसने क्या कहा, उसने जो ये ट्रेड दिया, इसने पहला सक्सेस इसका ये था विच वाज ऑन द बेसिस ऑफ दियर एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास पे पूरा दिया हुआ था। तो उन दिनों एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकाला हुआ था, तो उस पर उसने इस ट्रेड को आगे चलाया। दूसरी सक्सेस क्या थी उसकी, उसने एरिया दिया प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को, इसने दिया प्रॉपर्टीज ऑफ सेम एलिमेंट्स को, उसने रखा है एक ही ग्रुप में। द एलिमेंट्स ऑफ द सेम प्रॉपर्टी बाय ग्रुप्ड इन ए सेम पीरियड आर ग्रुप। तो मगर सक्सेस के साथ कुछ उसके ड्रॉबैक्स, फेलियर नहीं कहेंगे, ड्रॉबैक्स कहेंगे। उसका पहला ड्रॉबैक क्या था, सारे एलिमेंट्स ट्रेड में नहीं उसने दिखाए। मतलब अगर 3 3 दिए, फिर 3 के बाद अगर चौथा आ गया तो उसमें उसका फर्क आता था। दूसरा क्या उसने कहा, जो उसने ग्रुप दिया उनमें से उनकी फर्क आ रही थी ट्रेड में। मिसाल के तौर पर अगर हम एक ग्रुप में चौथा एलिमेंट लेंगे, मिसाल के तौर पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन लेंगे। यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एक ट्रेड है, इसका हमने अभी देखा, इसका जो क्लोरीन और आयोडीन का जो मीन आता है वो ब्रोमीन के बराबर आता है। लेकिन अगर हम लेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का, फ्लोरीन का एटॉमिक मास 18 है, क्लोरीन का अभी मैंने बताया 35.5 है और ब्रोमीन का 80 है। देखो बेटा यहां पर ट्रेड क्या हो गया फेल। अगर हम फ्लोरीन का 18
प्लस ब्रोमीन का 80 लेंगे डिवाइड बाई 2, 8 8 1 9 डिवाइड बाई 2, 2 चुके 8 2 9 18, ये आ गया 49। मगर यहाँ पर क्लोरीन का सिर्फ 35.5 है, तो यहाँ पर ये फेल हो गया है। ये जो ट्रेड था यहाँ पर फेल हो गया है और ये उसका मतलब ड्रॉबैक था। तो उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम, जो एक इंग्लिश केमिस्ट था 1865 में, उसने उसी को फॉलो किया, ट्रेड को फॉलो किया, डुबनियर के ट्रेड को फॉलो किया। उसका नाम था न्यूलैंड्स लॉ। मगर न्यूलैंड्स लॉ जो था ये 8 एलिमेंटों की प्रॉपर्टी में था। इसमें 7 एलिमेंट, 8वां एलिमेंट भी जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो पहले एलिमेंट के साथ मिलती थी। तो इसलिए उसको नाम दिया गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव उसमें क्या है? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में अगर हम 1 2 3 4 5 6 और 7 एलिमेंट्स लेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। जब हम लिथियम से शुरू करेंगे तो फ्लोरीन पर पहुंचेंगे। तो जब फ्लोरीन पर पहुंच गए हम, तो जब हम वापस फ्लोरीन से नीचे आ गए तो सोडियम पर आ गए हम। सोडियम पर जब हम आ गए, सोडियम और लिथियम की जो प्रॉपर्टी है एक जैसी। अगर हम वहां पर फ्लोरीन को देखिए, फ्लोरीन और क्लोरीन नीचे, इनकी प्रॉपर्टी मिल रही है। बीच में जब हम 7 एलिमेंट को छोड़ के 8वां एलिमेंट आ रहा है, जो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो पहले एलिमेंट के साथ मिलती है। तो इसीलिए इसको बोला गया है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। मगर ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए साजगार थी, हेवियर एलिमेंट्स के लिए ये सही नहीं थी। तो उसमें हम क्या कहेंगे? When the lighter elements were arranged in order to increasing their atomic mass या एटॉमिक वेट। गोया कि ये आप ध्यान रखना, ऑक्टेव ने, जिसने डुबनियर ने भी एटॉमिक वेट की बात कही थी, तो यहाँ पर न्यूलैंड ने भी एटॉमिक वेट की बात कही। इसने कहा when the lighter elements were arranged in order of their increasing atomic weight, the properties of every 8th element were similar to these first one। जो 8वां एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के साथ मिलती जुलती है। नॉट ऑफ उसने कहा, वो एक म्यूजिशियन था, म्यूजिक सुनने वाला था, उसने म्यूजिक पर इसका नाम दिया, सा रे गा मा पा, ऐसे ही। तो जब उसने 7 का नाम बोला तो 8वां रिपीट हो रहा था म्यूजिक में। जब 8वां म्यूजिक रिपीट हुआ, उसकी प्रॉपर्टी 8वें और पहले की प्रॉपर्टी सेम मिलती थी, तो उसने उसको दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो अब यहां पर पीरियडिसिटी क्या होगी? पीरियडिसिटी हो गया रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स, repetition of properties of elements in the periodic table is called periodicity। repetition जब 7 के बाद 8वां जो आ गया, पहले के साथ उसकी प्रॉपर्टी मिलती थी, गोया कि ये रिपीटेशन हो रही है, इसी को कहते हैं पीरियडिसिटी। तो इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हो गए, न्यूलैंड्स ऑक्टेव के भी कुछ ड्रॉबैक्स हो गए। इसमें एक अहम ड्रॉबैक था कि इसने नोबल गैसेस को ध्यान में नहीं रखा। जब 7 एलिमेंट्स आते थे, 8वां नोबल गैस आता था, तो 8वें नोबल गैस की प्रॉपर्टी पहले के साथ नहीं मिलती थी। लिहाजा उसका मेन ड्रॉबैक था, उसने नोबल गैसों का कोई ख्याल नहीं रखा था। तो डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस, द प्रॉपर्टीज ऑफ 8 एलिमेंट्स वर नो लॉन्गर सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट वन। जो नोबल गैस अगर 8वां एलिमेंट हम लेते तो वो पहले एलिमेंट के साथ नहीं मिलता था। और उसने प्रॉपर्टीज ऑफ हेवियर एलिमेंट्स की बात नहीं कही। गोया कि जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव था वो सिर्फ
لائٹر ایلیمنٹس کے لیے تھا، ہیویئر ایلیمنٹس کے لیے نہیں تھا. تو انشاءاللہ اگلے میں ہم لوتھرن اور مینڈلیو پیریاڈک ٹیبل انشاءاللہ پرسوں دوسرے لیکچر میں. آل دا بیسٹ. خدا حافظ.